আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মহারাজজি আজকে এখানে ভাগবত প্রসঙ্গ করার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সেজন্য মহারাজজিকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা যারা বিভিন্ন মঠ মিশন থেকে পরিচালিত ইউটিউব চ্যানেল দেখে থাকেন, তারা দেখেছেন নিশ্চয়ই 550-র বেশি প্রায় এপিসোড বা পর্ব ভাগবত গ্রন্থের উপরে মহারাজজি পরিচালনা করেছেন। ভাগবত বিশাল মহাসমুদ্র, মহাগ্রন্থ। পরমানন্দ পাঠায় প্রেম বর্ষাক্ষরায়তে সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমস্তুতে বলা হয়েছে। প্রতিটি অক্ষর প্রেম বর্ষণ করে, পরমানন্দ দান করে। আর কতক্ষণ ভাগবত কথা হচ্ছে, সদা সেব্যা শ্রীমদ ভাগবতী কথা যস্য শ্রবণ মাত্রেণ হরি চিত্তম সমাশ্রয়ে। ঠিকভাবে ভাগবত কথা যদি আমরা শুনতে পারি, ভগবান নিজে সে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। শৃণ্বত শ্রদ্ধয়া নিত্যম গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম কালেন নাতি দীর্ঘেন ভগবান বিশতে হৃদি প্রবিষ্ট কর্ণরন্ধ্রেণ শ্বানাম ভাবসরোরুহাম ধুনুতি সমলম কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ। ওই কানেরও ভিতর দিয়া মরমে পশিল। ভগবান আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। আমরা বলি আমরা ভগবানকে পাই না, ভগবানকে পাই না। ভগবান ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেও তিনি ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না, কারণ আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। সেজন্য বলে যে শৃণ্বত মানে শুনতে হবে, শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে। কতক্ষণ? নিত্যম, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। শৃণ্বত শ্রদ্ধয়া নিত্যম গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম। শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়লে হবে না। আমাদের ভগবানের নাম শুনলেই ঝিমুনি চলে আসে। বলছে এরকম না, সক্রিয়ভাবে শুনতে হবে। সচেষ্টিতম, শৃণ্বত শ্রদ্ধয়া নিত্যম গৃণতশ্চ, গ্রহণ করতে হবে। সচেষ্টিতম কালেন নাতি দীর্ঘেন, বেশি দিনও লাগবে না, অল্প দিনের মধ্যেই ভগবান বিশতে হৃদি, ভেতরে এসে প্রবেশ করে যান। আর প্রবেশ করে ভেতরের সরোবর, সেই সরোবরটাকে শুদ্ধ করে সেখানে হচ্ছে ভক্তি পুষ্প, ভক্তি পদ্ম প্রস্ফুটিত করেন, ভেতরটাকে সাফ করেন, পরিষ্কার করে দেন। শরৎকালের বিশুদ্ধ জল এসে যেমন নাকি পুষ্করিণীগুলোকে পরিষ্কার করে দেন, সেরকম ভগবান নিজে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে শুদ্ধ করে দেন। আর শুদ্ধ হলে একদিন দুদিন উৎসব নয়, নিত্যোৎসব ভবে তেষাম নিত্যশ্রী নিত্যমঙ্গলম যেষাম হৃদিস্থ ভগবান মঙ্গলায় তনোহরি। সমস্ত মঙ্গলের আশ্রয়ে শ্রীহরি একবার হৃদয়ে প্রবেশ করলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আমাদের জীবনে উৎসবায়িত হয়ে যায়, আনন্দ মুখর হয়ে যায়। আনন্দ 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 কেবল। তখনই আমরা বলতে পারি ধন্যোহম কৃতকৃত্যোহম বিমুক্তোহম ভবগ্রহাৎ নিত্যানন্দ স্বরূপোহম পূর্ণোহম তদনুগ্রহাৎ। মহারাজজি রাজকোট আশ্রমে ছিলেন, ছাপড়া আশ্রমে সেবাদান করেছেন, ভাইজ্যাক আশ্রমে সেবাদান করেছেন। এখন জাম্বিয়া লুসাকায় তিনি আমাদের রামকৃষ্ণ বেদান্ত স্বাগত জানাই, শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ইউটিউব চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যারা অনুষ্ঠান দর্শন করছেন তাদেরও আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই। ভাগবত গ্রন্থ সাধারণত ভাগবত সপ্তাহ ধরে আলোচনা করেও সে শেষ করা যায় না। 1 ঘন্টা মাত্র সময়, মহারাজজি চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব। তা এক একটা জায়গায় গিয়ে সকালে 3 ঘন্টা, বিকেলে 3 ঘন্টা ধরে আলোচনা করেন। তা সেই সময় আমাদের এখানে নেই যে 1 ঘন্টার মধ্যে মহারাজজি যেটুকু আলোচনা করা সম্ভব করবেন। তা সকলকে স্বাগত জানাই, শ্রদ্ধা নমস্কার কৃতজ্ঞতা জানাই।
এবং সকলের মঙ্গল কামনা করি। নমস্কার। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम आमी सश्रद्धेय प्रणाम जाना श्रीचरणे निवेदन करছি। सश्रद्धेय प्रणाम हमारे ज्ञान लोकानंद जी महाराज जी चरणे श्रीचरणे अन्यान्य सन्यासी वृंदेर चरणे श्रीचरणे हूँ आमार सश्रद्धेय प्रणाम जानाচ্ছি। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি বাংলা বলতে পারি না, একটু একটু পারি, তো most of our talk will be in Hindi and little bit mix of Bengali. Will it be okay? Yes. महाराज जी खूब भालो इंट्रोडक्शन दिएছেন भागवतेर उपरे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। शरत ऋतु जब आती है तब क्या होता है, वर्षा काल के पश्चात आती है, तो नदी का जल स्वच्छ हो जाता है, सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, और वो जल जब हम पान करते हैं तो बहुत मीठा लगता है, मधुर लगता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत जब हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो क्या होता है, हमारे हृदय की गंदगी जो है वो सब साफ हो जाती है। भगवान चाहते हैं कि मैं भक्त के हृदय में आऊं, तो भगवान आते हैं कैसे, बहुत सुंदर बताया है भागवत ने। देखिए, एक छोटी सी घटना के माध्यम से वो देखने का हम प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति था, अकेले रहता था, और वो डायबिटीज से ग्रसित था, ब्लड प्रेशर भी था, बीपी भी था, डायबिटीज भी था, और अपने कमरे में रहता था। अचानक उसका डायबिटीज डाउन हो गया। आप सब लोग जानते हैं, डाउन हो जाने से आदमी अचेतन हो जाता है। वो नीचे गिर गया, उसको मालूम नहीं अचेतन है, पूरा घर बंद है चारों ओर से। थोड़ी देर के बाद उसका मित्र आता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आती है। वो समझ गया कि मेरे मित्र को डायबिटीज है, शायद डायबिटीज डाउन हो गया है। उसने देखा पीछे के घर के पीछे एक छोटी सी खिड़की थी, वो खिड़की उसने तोड़ दी और खिड़की में से भीतर में वो प्रवेश करता है, और उसको सुंदर ग्लूकोज का जल दिया, थोड़ी मिठाई खिलाई, उसमें चेतन आया। उसने पूछा, तुम भीतर में आए कैसे? मैंने तो सब दरवाजा भीतर से बंद किया है। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे वहां पीछे एक छोटी सी खिड़की है, वो खिड़की खुली थी, उसके माध्यम से मैं भीतर में प्रवेश किया हूं। बस श्रीमद् भागवत यही कहता है। हम सब लोगों को बोले डायबिटीज हुआ है, महाराज जी की बात नहीं है, हम सब लोगों की बात है। क्या डायबिटीज हुआ है? संसार की वासना रूपी डायबिटीज हुआ है, और उसमें हम अचेतन हो गए, भूल गए हम किस लिए आए संसार में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, किस लिए आए, कितने दिन, किसी को कुछ मालूम नहीं कितने दिन रहेंगे। कोरोना ने सब सिखा दिया हम लोगों को, पूरा जगत का चित्र दिखा दिया, हमको किसी को मालूम नहीं है। और कितने कितने दुख कष्ट से गुजरे हैं हम सब लोग, और गुजर रहे हैं।
और इसी संसार की चिंता में हम लोग अचेतन हो गए। अब भगवान आते हैं, भगवान कहते मैं अविज्ञात हूं। भागवत में सुंदर प्रसंग आता है, भगवान का वहां एक नाम है अविज्ञात। आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम करते होंगे, वहां आता है ना, अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिने में सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर। भगवान का एक नाम है अविज्ञात। भगवान कहते मैं जन्मों जन्म से तुम्हारे साथ ही हूं, तुम मुझे भूल चुके हो। तो भगवान कहते मैं तुम्हारा मित्र हूं। और भगवान आते हैं, वो देखते हैं कि हमने तो हमारे हृदय के दरवाजे बंद कर दिए हैं, कर्ण के भी दरवाजे बंद कर दिए हैं, नेत्र के दरवाजे भी बंद कर दिए, सब दरवाजे बंद कर दिए, मुख के दरवाजे भी बंद कर दिए। पंच ज्ञानेन्द्रिया जिसके द्वारा हम ये जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब दरवाजे हमने बंद कर दिए, नेत्र बंद कर दिए। नेत्र से केवल बोले जगत ही देखते हैं हम, कर्ण से केवल संसार की ही बात सुनते हैं। बस आज ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं क्या क्या, मुंह से केवल संसार की ही बात बोलते हैं। स्पर्श करते हैं तो केवल संसार के लोगों को ही स्पर्श करते हैं। सब दरवाजे बंद कर दिए हमने। अब फिर भी भगवान आते हैं। कैसे आते हैं? एक छोटी जो खिड़की है ना, छोटा सा कर्ण का छिद्र छोटा ही है, भगवान कहते मैं कैसे भी भीतर में प्रवेश करता हूं। भगवान भीतर में आते हैं कर्ण के माध्यम से। और ये कर्ण क्या है? अभी हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग के माध्यम से भगवान हमारे कर्णों के भीतर में प्रवेश करते हैं। और भगवान देखते हैं हृदय में, हृदय एकदम गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये सब भरा हुआ है। भगवान कहते चिंता मत करो जीव, मैं सब साफ कर दूंगा। भगवान स्वयं सब साफ करते हैं। भगवान की कथा सब साफ करती है। भगवान स्वयं कहते मैं कैसा हूं। देखिए मां शारदा देवी कहती है ना कि यदि मेरी संतान कादा कीचड़ से गंदी हुई है तो उसके कादा कीचड़ को साफ करके गोदी में उठाना मेरा ही कर्तव्य है ना। मां शारदा देवी कहती है। यही बात श्रीमद् भागवत कहता है। मां ने भाषा बदली है, संस्कृत से बंग भाषा में बोला है, आज की आधुनिक भाषा हमारी। देखिए शास्त्र और श्रीमद् भागवत क्या करती है। भागवत भगवान संत और आचार्य कैसे होते हैं? गैया के समान होते हैं, गोवत्स और गैया के प्रेम के समान होती है। कैसे? गैया जब अपने बछड़े को जन्म देती है, जब बछड़ा बाहर निकालता है तो बछड़े के शरीर पर कितना खून लगा है, कितने मांस के लोदे लगे हैं, कितना गंदा है। गैया ऐसा नहीं कहती कि जाओ इसको स्नान करा के ले आओ, तत्पश्चात मैं उसको प्रेम करूंगी। गैया क्या करती है? स्वयं चाटती है उसकी गंध की पूरी। और कैसे चाटती है? प्रेम से चाट रही है। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे बहुत गंदा है कैसे भी चाट लो, जी ना, प्रेम से चाटती है गैया और अपने बछड़े को स्वच्छ कर देती है और बाद में अपना दूध पिलाती है। बस भागवत और शास्त्र और आचार्य यही करते हैं। हमारे मन पर गंदगी लगी हुई है। भगवान कहते चिंता मत करो जीव, तुम मेरे हो। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ओ जीव तुम मेरे हो, तुम पराये के नहीं हो। मां शारदा देवी कहती है ना, मैं सत की भी मां हूं और असतेर मां हूं, मैं असत की भी मां, मैं ही मां हूं। ये बात पूरी मानी शास्त्र और मां शारदा देवी एक ही बात बोल रहे, भागवत और मां शारदा देवी। भागवत यही कहते तुम चिंता मत करो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं। अभी कैसे साफ कर रहे हैं? भागवत के श्रवण के माध्यम से। भगवान कहते जितना भागवत का श्रवण करोगे, भागवत की विशेषता यह है कि भागवत सुनने के लिए आपको कोई अधिकारी नहीं बनना है। देखिए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ है, आप लोग तो महाराज जैसे विद्वान पंडित स्वामी जी के सानिध्य में रहते हैं, सन्यासी वृंद है यहाँ पर, आप सब लोग आते रहते हैं, महात्मा लोग सत्संग करते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मसूत्र।
उपनिषद सुने होंगे उनके मुंह से। तो ब्रह्मसूत्र जो ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उपनिषद पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए। पर भागवत कहता है भागवत को सुनने के लिए, उसके श्रवण के लिए कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। बस तुम केवल आ जाओ, जैसे भी हो, चिंता मत करो। बोले हमने न करने का सब किया है, कोई चिंता नहीं, केवल बैठ जाओ। श्रीमद् भागवत हमको योग्यता प्रदान करता है, हमको योग्य बना देता है। भगवान की कथा सुनते सुनते ये हमारा हृदय पवित्र बनाता है भगवान। तो भगवान कहते मैं तुम्हारे कर्ण के माध्यम से प्रवेश करता हूं और तुम्हारे हृदय को पवित्र बना देता हूं। यह है श्री कृष्ण, यह है भगवान श्री रामकृष्ण। इसलिए देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर उक्ति कही, भक्त भागवत भगवान। और कोई ग्रंथ का नाम नहीं दिया है उन्होंने। वो अवतार वरिष्ठ है, सामान्य नहीं है। उनके मुंह से जो जो शब्द बोला है वो वेद है, वेद वाक्य है। वो चाहते तो कुछ भी बोल सकते थे, गीता बोल सकते थे, उपनिषद बोल सकते थे, शास्त्र भी बोल सकते थे, कुछ भी नहीं बोला। कहते हैं भागवत भक्त भगवान। ये श्रीमद् भागवत है। भागवत शब्द का अर्थ भी हम देख ले। प्रत्येक शब्द का अर्थ है भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य और त अर्थात तुरंत। जिसके श्रवण से भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित तुरंत प्राप्त हो जाए, वो है श्रीमद् भागवत। ये विशेषता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ की। इसलिए महात्माओं ने कहा भागवत क्या है, भाति अति सर्वलोकेषु, सभी लोकों में, 14 लोक, 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, सभी लोकों को जो प्रकाशित करता है। भाति अति सर्वलोकेषु, वो क्या है, भागवत। हमारे हृदय में अंधकार है, जब हम लोग दीप प्रागट्य करते हैं हम सब लोग स्तोत्र गाते हैं, क्या है, बोले आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवताः नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये कहते जैसे वर्षा का जल आता है, वर्षा का जल भिन्न भिन्न नदियों, सरोवर और सबके माध्यम से अंत में समुद्र को जाकर मिलता है, वैसे ही हे भगवान भिन्न भिन्न शास्त्र, भिन्न भिन्न ज्ञानी लोग, भिन्न भिन्न ग्रंथ तुम्हारी भिन्न भिन्न रूप से महिमा गाते हैं, लेकिन वो सब महिमा अंत में हे केशव आप ही के चरण में जाती है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। क्यों भागवत चारों लोगों को प्रकाशित करता है। कहते हैं जो असत है वो कैसा है, तमोगुणी है, और वो कैसा है, अंधकार स्वरूप है, और वो अज्ञान है। बहुत सुंदर शब्द श्लोक है उपनिषद का, असतो मां सद्गमय। जो असत है वो अज्ञान है, वो तमोगुण है और वो अंधकार है, और जो सत है वो प्रकाशमान है, और वो कैसा है, अमृतत्व देने वाला है, और वो आनंददायक है। तो भागवत हमें आनंद प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, प्रकाश देता है। किसका प्रकाश देता है, हम कौन हैं और हमारा और भगवान का संबंध क्या है। श्री रामकृष्ण देव भी यही करते थे। जो भी उनके पास अंतरंग सन्यासी शिष्य और भक्त लोग आते थे, उनको कहते थे देखो 2 बात आप लोग समझ लो। अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते थे यह कौन है और तुम कौन हो, और तुम्हारा और इसका संबंध क्या है। बस जब हमको समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं, अरे हम भगवान के हैं, भगवान के अतिरिक्त और किसी के नहीं है। इसलिए भगवान गीता में पुनः पुनः कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। देखिए एक छोटे से उदाहरण से घटना को समझने का प्रयास करें। एक बहुत धनाढ्य, बहुत बड़े मानी इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका एक लौता पुत्र था। पुत्र अमेरिका से पढ़ाई करके आया,
पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, करोड़ों अरबों को साम्राज्य है हमारा, अनेकों देश में फैक्ट्रियां हैं, तुम एक कुर्सी तुम्हारे लिए हमने रखी है, तुम इसको ले लो और तुम उसको भी चलाओ। पुत्र ने कहा जी ना पिताजी, हम कुछ नया करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब पुत्र ने एक नया धंधा शुरू किया, नई फैक्ट्री डाली। पुत्र जो है बहुत मेहनत करता है, रात दिन बहुत परिश्रम करता है, लेकिन कुछ इतना जुटा नहीं पाया 2 साल में। कुटुंब का एक नियम था, रात्रि में सब लोग इकट्ठा होकर के भोजन करते हैं, ये नियम था कुटुंब का, परिवार का। एक दिन क्या हुआ, माता पिता बैठे हैं, 10 बज गए, अभी तक पुत्र नहीं आया है। इतने में नौकर ने दरवाजा खोला, पुत्र ने भीतर में प्रवेश किया। वो पुत्र जब पिता को देख रहा है, मां को देख रहा है, दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो देख रहा है, वहीं पर वो टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। पिताजी दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं, कहते बेटा क्या हुआ? पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे पुत्र क्या हुआ तुमको? मैं हूं, तुमको क्या हुआ बताओ मुझे। मैया दौड़े दौड़े, मां क्या करती है, दौड़े दौड़े आती है और अपने साड़ी के पालव से पुत्र के नेत्र पोंछती, बोलो बेटा क्या हुआ तुम्हें? तब पुत्र में साहस आया, पिताजी ने अपने उनका हाथ पुत्र के कंधे पर रखा, मां ने उसके आंसू पोंछे। पुत्र कहता कि पिताजी मैं 1.5-2 साल से खूब परिश्रम कर रहा हूं मेरी फैक्ट्री को सक्सेस करने के लिए, लेकिन सक्सेस की जगह फैक्ट्री खोट में गई है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की खोट आई है। पिताजी कहते तुम 1 करोड़ रुपए के लिए चिंता कर रहे हो? तुम चाहिए 100 करोड़ ले जाओ, 200 करोड़ ले जाओ, ये सब साम्राज्य मैंने किसके लिए रखा है? ये किसके लिए है? क्यों तुम चिंता कर रहे हो? अब सोचिए पुत्र के मन में कितना साहस आ गया। अरे मेरे पिताजी इतने महान है, मुझे इतने सांत्वना दे रहे। मैया कहती है, मां कहती है बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? 1 करोड़ क्या 10 करोड़ ले जाओ, 20 करोड़ ले जाओ, 100 करोड़ ले जाओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? भगवान ने भी यही किया है हम लोगों के साथ में। कोरे कागज पर एफिडेविट करके दे दिया है भगवान ने, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तुम कैसे भी हो जीव, तुम चिंता मत करो, तुम एक बार आ जाओ। भागवत कहता है तुम एक बार आ जाओ भागवत में, भागवत का श्रवण करने के लिए, फिर देखो भागवत तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। अब भागवत का जो मंगलाचरण है वो है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप का वर्णन है यहाँ, और हमारे स्वरूप का भी वर्णन है। भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। सत मानी क्या? जो भूतकाल में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में रहेगा, जिसके ऊपर काल की कोई असर पड़ती नहीं है, वो सत। चित्त मानी ज्ञान स्वरूप। आनंद मानी जो हमें आनंद प्रदान करता है। हमारा स्वरूप भी सत्य स्वरूप है। कैसे? 100 वर्ष पहले हम सब लोग थे, इस शरीर अलग था, शरीर नहीं था, ये दूसरा शरीर था। हम सब लोग सनातन धर्म में मानने वाले हैं, सनातन धर्म का नियम है, हम सब लोग पुनर्जन्म में मानते हैं। तो 100 वर्ष पूर्व हम लोग थे, शरीर अलग था। 100 वर्ष के बाद भी रहेंगे, शरीर दूसरा रहेगा। ये सत्य स्वरूप हुआ। ज्ञान स्वरूप, हम सब लोगों का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। हम सब लोग कोई अपने को बुद्धू नहीं समझते हैं, हम सब लोग ज्ञानी हैं। आप सब लोग ने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की है, आप सब लोग उच्च पदाधिकारी भी रहे, अच्छा कार्य भी कर रहे हैं जगत में, और अच्छा ज्ञान है, इसलिए तो आज सत्संग में आए हैं आप लोग। कितना सुंदर बुद्धि दिया है भगवान ने। आप सब लोग ज्ञानी हैं, फिर भी कुछ सुनने के आपके मन में एक झंखना है। वो बताता है कि हम ज्ञान के पिपासु है, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वरूप है, इसलिए हम अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, सत्संग सुनना पसंद करते हैं। ये हमारा ज्ञान स्वरूप हो गया।
और हम सब लोग आनंद चाहते हैं। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान का सत्संग जब तक सुनते हैं कितना आनंद आता है। आप लोग गाते हैं ना, जखानी मायेर नाम शेखानी आनंद दाम, आनंद शेथानंद, आनंद शेथानंद। बस यही है, भगवान का नाम हमें आनंद देता है। हम सब लोग आनंद की खोज में हैं, आनंद की शोध में हैं। हम सबको आनंद चाहिए। हम में से कोई ऐसा नहीं कहेगा अच्छा ठीक है हमको आधे घंटे के लिए दुख दे दो और बाकी 23 घंटा और 30 मिनट हमको सुख दो, ऐसा हम कोई कहते हैं? जी ना, हम सबको आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? 24 घंटा आनंद चाहिए। हम लोग में से कोई ऐसा नहीं कहते हम लोगों को ऑफिस में आनंद मिले और घर में आनंद न मिले ना। हमको ऑफिस में भी आनंद चाहिए, घर में भी आनंद चाहिए, बिजनेस करने जाते हैं तो वहां पर भी आनंद चाहिए, जहां भी जाए शॉपिंग करने जाए तो वहां पर भी आनंद चाहिए। हमको सब जगह आनंद चाहिए। तीसरा, हमको सबके पास से आनंद चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता है मुझे मेरी भार्या संतान यानी पत्नी और संतान से आनंद मिले, बाकी सबसे दुख मिलेगा तो चलेगा। जी ना, हमको अपने कुटुंबीजनों से, मित्रों से, स्वजनों से, सबके पास से हमको आनंद चाहिए। और हमको जागृत अवस्था में भी आनंद चाहिए। जब सो जाते तो स्वप्न आता है, स्वप्न भी अच्छा आता है तो अच्छा लगता है। कोई खराब स्वप्न आ गया तो उठ जाते, गोविंदा नारायणा विठ्ठला, विष्णु सहस्रनाम करते हैं, भगवान को पाठ करते, स्तुति करते, भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे बार बार, ठाकुर जी देखो कुछ गड़बड़ न होना चाहिए। स्वप्न में भी हमको आनंद चाहिए, सुषुप्ति में भी आनंद चाहिए। सो गए, अच्छी नींद आनी चाहिए। नींद अच्छी नहीं आई तो सुबह दूसरे दिन हमारा खराब जाएगा। हम सबको सब अवस्थाओं में, सबके पास से, सभी समय आनंद ही चाहिए, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। और हम लोग आनंद ढूंढते हैं बाहर में, यही गड़बड़ हो गया। अब सोचिए, सब समय जो कौन है हमारे साथ रहने वाला? घर के आपके जो संबंधी है, हो सकता है ऑफिस में नहीं हो आपके साथ, लेकिन घर में है। आप कहीं काम से गए तो वहां नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ सब समय कौन है साथ में? एकमात्र भगवान, जो हमारे साथ सब समय रहते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में। स्वप्न में तो कुटुंब के लोग नहीं रहते हैं, खाली जागृत में रहेंगे मैक्सिमम। स्वप्न में और सुषुप्ति में कौन रहते? भगवान ही तो रहते ना। आंख बंद करके सो गए, सुबह आंख खुली तो भगवान की कृपा है ना। तब तो कहते ना मैं चैन से सोया, हमें भालो करे घूमिए छी आज की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने उठाया। तो सभी अवस्थाओं में हमारे साथ कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। सब समय सब जगह कौन है? अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवान है। और हमें आनंद भी कौन दे सकता है? केवल भगवान ही दे सकते हैं। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शस्वन् मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णव शोषणं नृणाम्, यदुत्तमः श्लोक यशोनुगीयते। अरे हमारे सभी शोक को दूर करके हमको सदैव आनंद प्रदान करने वाले वो एकमात्र भगवान श्री राम कृष्ण देव नंद नंदन यशोदा नंदन है, और कोई नहीं है। हम सबका स्वानुभव रहा। किसी से मित्रता हुई, 1 साल के बाद 2 साल के बाद झगड़ा हुआ, फिर देखने के तक का संबंध नहीं रहता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे उतना ही हमें अधिक नूतन नूतन नया नया आनंद प्राप्त होगा। दिने दिने नवम नवम भगवान का स्वरूप है ये, और वही स्वरूप हमारा हो गया। भगवान क्या करते वो बताया, सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका स्वरूप। फिर कहते हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं और संहार करते हैं। यही मात्र आपनारा सबाई गेलेन ने, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी। बस यही बात है।
भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार भी वही करते हैं। हम भी यही करते हैं। देखिए, या कोई नया मकान बनाते हैं, आपने अपना घर का नया सुंदर मकान बना दे, एक नतून भालो भालो एक बाड़ी करे फेलले, बस नया मकान बनाया। या আপনার বাবা যেটা মকান বানিয়েছেন, বাড়ি বানিয়েছেন, সেটাকে আপনি ভালো করে মেনটেন করছেন, তাহলে কি হয়ে গেল? यू आर मेंटेनिंग इट। सृष्टि स्थिति उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। बोले ना এখন এই বাড়িটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, এটা ভেঙে দাও, নতুন বাড়ি করবো এর জায়গায়। संहार করে দিলেন। আমরা সবাই এটাই করছি। मन में भी देखिए हम नए नए विचार बना रहे। ये तो ग्रॉस की बात हुई, स्थूल की। लेट अस गो टू द सटल। यू नो, ऑल ऑफ अस आर स्टार्टिंग न्यू थॉट्स। नए नए विचार हमारे सबके मन में आ रहे हैं। आज हम भागवत सुन रहे हैं, नए विचार मिल रहा है। जब महात्मा लोगों के पास आते हैं, नए विचार मिल रहे। अच्छी किताब पढ़ते, रामकृष्ण कथामृत पढ़ते हैं, नए नए विचार आते भगवान के प्रति। स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ছি তখন নতুন নতুন ভালো ভালো চিন্তা ভাবনা মনে আসছে। মানে क्या हुआ, हमने निर्माण किया विचार का। फिर उस विचार में हम स्थित होते, उस विचार को चलाते आगे, उस विचार को संरक्षित करते हैं। और जो गंदे विचार थे, खराब विचार थे, अशुभ विचार थे, अपवित्र विचार थे, उसका हमने त्याग कर दिया। हम भी यही करते हैं, सर्जन करते हैं, स्थिति करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय। भगवान क्या करते हैं, हमारे तीनों ताप को दूर करते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप है। ताप क्या होते वो समझना है। पाप का फल है ताप। हमने कुछ पाप किया तो उसके परिणाम स्वरूप हमको ताप भुगतना पड़ेगा, जो भी पाप किया है। लेकिन हे भगवान, जब हम आपकी शरण लेते हैं, जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते चिंता मत करो, मैं पाप को ही खत्म कर दूंगा। और श्री कृष्ण ने किया, अघासुर का वध कर दिया। दशम स्कंद में आता है, अघासुर मानी पाप, अग मानी पाप, अनघ मानी जो पाप रहित है। अनघाद भूत ललिता सहस्त्रनाम में आता है ना, आप लोग करते हैं ललिता सहस्त्रनाम, उसमें आता है अनघाद भूत, मां का नाम है अनघाद भूत, पाप रहित। तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो, जैसे तुम भागवत का श्रवण करोगे मैं तुम्हारे पाप को ही खत्म कर दूंगा। ब्रह्मा जी घबरा गए जब भगवान ने पाप का ही संहार कर दिया। ब्रह्मा जी कुछ समझ में नहीं आया, बोले पाप को ही उड़ा दिया भगवान ने, तो अब कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा करने आए और फिर ब्रह्मा जी का मोह हो गया। वो दूसरा प्रसंग है। लेकिन भगवान कहते जीव तुम चिंता मत करो, एक बार तुम भागवत की शरण लोगे, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को ही खत्म कर दूंगा। अब पाप नहीं रहे तो ताप आएगा कहां से। तीन ताप जो है, अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। अधिभूत क्या है भाई, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोरोना हुआ, वायरल हुआ, ये सब अधिभूत है। अधिदैव, बाढ़ आ गई, धरतीकंप हो गया, ये कोरोना आया, अधिदैव, ये सब अधिदैव है। और अध्यात्म, मन में तो दुख लगा ही है, हम सबके मन में दुख है। किसी ने अपमान कर दिया है, या कोई बात हमारी सुनता नहीं है, हम वृद्ध हो गए हैं, या हमको अभी संसार इतना सम्मान नहीं देता है, कोई ना कोई दुख हमारे मन में लगा ही है। तो भगवान कहते मैं तुम्हारे तीनों ताप को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। फिर कहते श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण के आगे श्री शब्द लगा है। श्री शब्द किसके लिए उपयुक्त किया है, श्रीमती रासेश्वरी, व्रजेश्वरी, श्रीमती राधा रानी के लिए। देखिए श्रीमद् भागवत में कहीं पर राधा जी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कोई गोपिका का नाम भी नहीं लिया है। श्री शुकदेव जी के गुरु जो है वो श्रीमती राधिका जी है। शुकदेव जी तोता थे, तो वो
राधा राधा जप करते थे, तो श्रीमती राधिका जी उनके पास आती है और कहती है, राधा राधा मां वद, कृष्ण कृष्ण वद। और इसलिए शुकदेव जी ने बहुत मर्यादा में कहिए, हम सब लोग जानते हैं, हम गुरु का जो नाम है जैसे वैसे उच्चारण नहीं कर सकते, एक मर्यादा है। इसलिए सुखदेव जी ने बहुत मर्यादा में भागवत की कथा की है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं पर राधा जी का नाम नहीं है। अब श्रीमती राधिका जी कौन है? श्री कृष्ण के प्रेम का प्रगटीकरण, उसका नाम है राधा। राधा शब्द को उल्टा दीजिए तो क्या हो गया? धारा। राधा उल्टो करे दिन ताले की हो गेलो? धारा। श्री कृष्ण प्रेमेर अविरत धारा, वो हो गया राधा। राधा राधा 10 बार बोलेंगे तो धारा निकल जाएगा। देखिए, राधा राधा धारा धारा धारा, तुरंत श्री कृष्ण प्रेम की अविरत धारा, उसका नाम है श्रीमती राधिका जी। इसलिए श्री कृष्ण शब्द के आगे श्री लगा है। अब कृष्ण किसे कहते हैं? तो बहुत सुंदर अर्थ है, कर्ष इति कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसका नाम है कृष्ण। बहुत सुंदर घटना है, क्षमा कीजिए। वृंदावन में एक नई बहू आती है ब्याह करके। अभी बहू आई है तो जो सासू है, सासू माँ, वो अपनी बहू को समझाती है। नई नई बहू आती तो मदर इन लॉ विल एजुकेट द डॉटर इन लॉ, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, डोज एंड डोंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट। तो सासू माँ जो है बहू को समझा रही है, देख हमारे वृंदावन में एक बहुत नटखट लड़का है और वो ऐसा नटखट है, उस सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब तुम नहीं आई हो, तुम्हारा मन भी वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास आएगा। वो क्या करेगा? पहले बांसुरी बजाएगा और जैसे तुमने उसकी बांसुरी सुन ली, समझ लो तुम चली जाओगी। इसलिए जहां तुमने उसकी बांसुरी सुनोगी, बांसुरी का नाद, वेणुनाद, तुम अपने कानों में अंगुलियां डाल देना। बोले ठीक है माँ, सासू माँ आपकी जैसी आज्ञा। अब नई बहू जो सासू माँ कहेगी वो तो मानेगी। फिर सासू माँ कहते, देख वो वहां रुकने वाला नहीं है, वो आएगा तुम्हारे सामने नृत्य करेगा पायल पहन करके, तुम उसके नृत्य को मत देखना। बोले सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे आंखों को बंद कर दूंगी। बोले ठीक है। तो सब इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब भगवान को पता चला है कि नया जीव आया है, तो भगवान तो अपनी ओर खींचना चाहते सबको। यही तो श्री कृष्ण है जो सबको अपनी ओर खींचे। अब क्या हुआ? भगवान ने अपना वेणुनाद किया। उस जो गोपी आई थी नहीं, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जहां उसने सुना कि बंसरी का नाद आ रहा है, तुरंत उसने कर्णों में अंगुलियां डाल दी, कानों में अंगुली डाल दी। बोले सुनना नहीं है। सासू माँ ने कहा सुनना नहीं है। ठीक है। अब भगवान भी सोच रही, पहला जीव है जो वेणु सुनकर कानों में अंगुली डाल रहा है। ठीक है। तो भगवान धीरे धीरे नृत्य करने लगे। सुंदर। उसने देखा पायल की आवाज आ रही है, तुरंत अपनी आंखों को मुंद कर लिया। अब भगवान सोचते, वाह ये जीव तो भाई गजब का है, हमारा नृत्य भी नहीं देखना चाहता, हमारे वेणुनाद भी सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, अभी तो श्री कृष्ण है ना। उन्होंने क्या किया? छोटा सा कंकण लिया, पत्थर, छोटा सा कंकण, और भगवान ने धीरे से मारा, और वो कंकण जो है वो बहू के मस्तिष्क पर लगा। और उसने देखा किसने मारा, और जहां देखा बस खत्म हो गया। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम शाम्र पयोदसौभगम। अद्भुत अद्भुत। She could not utter even single word. She simply started to run towards Krishna. वो कुछ नहीं कर पाई। हा करके अद्भुत, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर सौंदर्य, अवर्णीय, अकल्पनीय।
बस दौड़ती है। और वो दौड़ती है, उधर में सास और वो जो जेठानी देरानी जो भी होता है हमको मालूम नहीं है, दोनों खड़े थे। मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ बोथ वर स्टैंडिंग एंड दे वर वॉचिंग एंड दे हैपन टू सी दैट डॉटर इन लॉ इज रनिंग। सिंपली बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू चेस। बस वो दोनों भी दौड़े, वो दोनों भी दौड़े। इधर बहू भी गई और सासू भी गई और देरानी जेठानी भी चली गई। और जो भगवान के पास जाता है फिर लौट करके आता नहीं है। ये है श्री कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो है श्री कृष्ण। देखिए अवतारों का पार्थक्य है। श्री राम जो है वो सत्व की प्रधानता से है, श्री कृष्ण जो है वो आनंद की प्रधानता से है। दत्तात्रेय जो है ना वो है ज्ञान की प्रधानता से, नारायण जो है वो तपस्या की प्रधानता से है। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं ईश्वर के मातृ प्रेम का दर्शन कराने के लिए मां शारदा को लेकर के आया हूं, उसी तरह से ईश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण वो है श्रीमती राधिका जी। श्रीमती राधिका जी और श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य को पूछ रहे, अच्छा सबसे शुरू में कौन सा रस होता है? तो कहा अभी शांत रस। भगवान एक उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, हम उनकी भजना कर रहे, प्रार्थना कर रहे हाथ जोड़ के, वो हो गया शांत रस। फिर आया दास्य रस, भगवान की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रभु आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक है, दास्य रस। उससे ऊपर का है सख्य रस। सख्य रस क्या है? बोले भगवान को सखा के रूप में हम मानते हैं, आप मेरे प्रभु मित्र है। आगे बोले वात्सल्य रस, भगवान मेरी संतान है, मैं भगवान का पिता हूं या मैं भगवान की मां हूं। और फिर आया माधुर्य रस, मैं भगवान की अर्धांगिनी हूं। अब ये पांचों रस से ऊपर का जो रस है वह श्रीमती रासेश्वरी का रस। श्रीमती रासेश्वरी मानी राधिका जी को प्रश्न किया गया, श्री कृष्ण और आपका संबंध क्या है? तो राधा रानी कहती है मैं भोक्ता और वो भोग्य, या मैं रमणी और वो रमण, वो भाव हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रियतमा वो प्रियतम, मैं भोक्ता और वो भोग्य, मैं रमणी और वो रमण, ये भाव नहीं है। एक ही प्रेम रस जब पीली शीशे में डाला गया तो उसको कहा कि वो राधा रानी है, और वही रस जब सांवली शीशे में आया तो उसको कहा कि वो श्री कृष्ण है। इसलिए आप लोग गाते हैं ना, तुम्ही आधा राधा आधा कृष्ण साजिले वृंदावने, एक बार बिराजो गोमा हृदय कमलासने। वृंदावन में जाएंगे तो यही है, जो बांके बिहारी है वो कमर से ऊपर क्या है? श्री कृष्ण, और कमर से नीचे श्रीमती रासेश्वरी ब्रजेश्वरी है। यही है भगवान का स्वरूप। श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका जी दो अलग नहीं है, एक ही प्रेम की दो धारा, या एक ही प्रेम की दो धारा, या एक ही प्रेम जब सांवली शीशी में आया तो राधिका बना, एक ही प्रेम जब पीली शीशी में आया तो वो राधिका जी बना, एक ही प्रेम जब सांवली शीशी में आया तो वो श्री कृष्ण हो गया। अब श्रीमद् भागवत का जो तत्वार्थ है वो उसके प्रथम श्लोक में ही दिया है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत जन्माद्यस्य से होती है, जकार शब्द से। बहुत सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि।
ये प्रथम श्लोक में भगवान वेद व्यास ने समस्त भागवत का तात्पर्य रख दिया है। श्रीमद् भागवत की विशेषता है, श्रीमद् भागवत इस सृष्टि से जो परे हैं उस भगवान की ज्यादा बात नहीं करता है। श्रीमद् भागवत उस भगवान की बात करता है जो भगवान ये भिन्न भिन्न रूप में हमारे सामने विद्यमान है। वही अनंत अखंड अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म जब भिन्न भिन्न मनुष्यों का आकार लेता है, भिन्न भिन्न पशु पक्षी कीट वनस्पति पेड़ पौधे समुद्र सरिता उसका आकार लेकर जगत बना, तो उस भगवान की बात श्रीमद् भागवत करता है। श्रीमद् भागवत कहता है भगवान का सबसे बड़ा अवतार ये जगदावतार है, इसलिए कहते हैं जन्माद्यस्य, बोले जो भगवान जन्म आदि अस्य संधि विच्छेद करे तो जन्माद्यस्य, जो सृष्टि स्थिति विनाश करते उतना ही नहीं जो उससे भी परे हैं, बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन। नासदीय सूक्त हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे ना, नासदीय सूक्त का अनुवाद, इसके पहले सत भी नहीं था असत भी नहीं आकाश भी नहीं वायु भी नहीं कुछ भी नहीं था, ना सदासिन नो सदासित। नासदीय सूक्त, वह ब्रह्म केवल ब्रह्म ही था और कुछ नहीं, अनंत अखंड अविनाशी वह ब्रह्म, उसने संकल्प किया, क्या किया, मैं एक हूं उसका बहु बनूं, आई एम वन लेट मी बिकम मैनी। और वो क्या किया उसने, इस जगत का रूप धारण कर लिया। जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, कैसे रूप धारण किया, बोले अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से। कैसे, तो एक सिंपल उदाहरण से बताते हैं अन्वय और व्यतिरेक क्या है। देखिए ये जो हमारे पास ये है, ये हैंकरचीफ है, रुमाल है। ये रुमाल किसका बना है, आप कहेंगे धागों का बना है, धागों का ही बना है ना रुमाल। इस रुमाल के कोई भी कोने में देखे तो केवल धागा ही धागा है। ऐसा हो सकता है कि रुमाल नहीं रहे पर धागा रहेगा, हाँ कि ना, यस, धागा रहेगा पर हो सकता है रुमाल नहीं रहे। धागा है इसलिए रुमाल है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि रुमाल है पर धागा नहीं है, ऐसा हो सकता है। बस ये हो गया अन्वय व्यतिरेक। भगवान है, जगदीश है इसलिए जगत है, मिला लीजिए, धागे हैं इसलिए रुमाल है, धागे की जगह जगदीश को रख दीजिए, भगवान को। जगदीश है इसलिए जगत है, और ये जगत में और कुछ नहीं है, केवल जगदीश ही जगदीश है। स्वामी जी कहते हैं ना अपने ज्ञान योग के अंदर में, वन इज अपीयरिंग एज मैनी, एक ही अनेक रूप में भासित हो रहा है। और फिर कहा हो सकता है कि भाई रुमाल न रहे पर धागे रहेंगे, बस जगत नहीं रहेगा फिर भी भगवान अर्थात जगदीश रहेंगे। तो जब जगत नहीं था तब जगदीश थे, जगत है तो भी केवल जगदीश ही है। रुमाल है तो क्या है, केवल धागा ही है, धागे को एक आकार दे दिया और नाम दिया तो बोला गया उसको कभी ये रुमाल है, हैंकी है, ठीक है कि नहीं। और जब रुमाल नहीं रहेगा तब भी क्या रहेगा, धागा ही रहेगा। तो जगत नहीं रहेगा तब भी जगदीश ही रहने वाला है। बस यही हो गया, भगवान इस तरह से जगत में है। जब जगत नहीं था तब केवल भगवान ही थे, जगत है तब भी केवल भगवान ही है, भिन्न भिन्न रूप में। इसलिए कहते महात्मा लोग, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया, रामकृष्ण कथामृत में आता है प्रसंग। श्री रामकृष्ण देव, नरेंद्रनाथ दत्त इत्यादि लोग बैठे थे, उनको कह रहे हैं कि मैंने देखा कि कोशाकुशी सब कुछ चैतन्य हो गया। तब नरेंद्रनाथ दत्त कहते, महाशय आपकी कितनी सुंदर कल्पना है। श्री रामकृष्ण देव कहते, कल्पना नहीं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है।
कि सब चैतन्य हो गया। देखा है, अनुभव किया श्री रामकृष्ण देव ने। देखिए श्री रामकृष्ण देव का जीवन वो श्रीमद् भागवत का मूर्तिमंत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में जो अद्भुत अद्भुत तत्व ज्ञान है, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में अनुभव करके हमारे सामने रख दिया है। इसलिए अवतार वरिष्ठ है वो। श्री रामकृष्ण देव ने बताया, देखिए आप लोग जानते श्री रामकृष्ण देव के कमरे के बाहर में लॉन थी, घास था सुंदर। एक व्यक्ति कभी उसके पर चल रहा है, श्री रामकृष्ण देव को कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। अरे बाप रे, उसको कहो जल्दी से नीचे उतरे, बिकॉज ही हैज बिकम वन विद द यूनिवर्स। सृष्टि के साथ एक हो चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी नहीं थे, वो अद्वैत थे। मां स्वयं निजे बोले छेन, श्री रामकृष्ण देव अद्वैत छिलेन ताई तुमरा अद्वैतवादी। ही बिकेम वन विद द यूनिवर्स। दूसरा, दो नाविक गंगा के उस किनारे झगड़ा कर रहे हैं। एक नाविक ने दूसरे नाविक को मारा तो उसके निशान श्री रामकृष्ण देव के पीठ पर आ गए। श्री रामकृष्ण देव को असह्य पीड़ा हुई है। एक दिन उनके एक शिष्य उनकी उपस्थिति में एकदम से धोती को फाड़ दिया उन्होंने। श्री रामकृष्ण देव बहुत चित्कार कर उठे एकदम, ओ मां रे। और उसको कहते, कभी ऐसा मत करना। क्या है वो? he became one with the dhoti also, not only with living beings, with non living beings also he became one, because God is everywhere. निराकार साकार सर्वेय दत्त, अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है। धोती को फाड़ दिया, वो चित्कार कर उठे, बोले देखो कभी ऐसा मत करना, वरना इसके भीतर में जो है वो तुमको खा जाएगा, इस तरह से करोगे तो। He has become one with the universe. तो जन्माद्यस्य यतोन्वया अन्वय इतरतश्च। और कहते हैं कि वही भगवान ज्ञान स्वरूप है, स्वयंभू स्वराट। और फिर कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प से ज्ञान प्रदीप्त कर दिया। भगवान ने सुना सुना करके ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं दिया है, संकल्प मात्र से बस ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया है। और जिसके बारे में ऋषि लोग कहते हैं नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। उपनिषद गर्जना करता है पुनः पुनः, यह नहीं, भगवान ऐसे बोले ना, ऐसे भी नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कथामृत में, कितना सरल भाषा में श्री रामकृष्ण देव समझा रहे। अरे ईश्वर साकार भी है, निराकार भी, और उससे भी परे कुछ है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय को पूछते हैं, अच्छा तुम साकार में मानते हो कि निराकार में? तो बोलते हैं मुझे निराकार में मेरी श्रद्धा है। बोले ठीक है, लेकिन साकार भी सत्य है, ऐसा मत समझना केवल निराकार है। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी, और उससे भी परे कुछ है। तो जो इसके बारे में वेद कहते हैं यह नहीं यह नहीं, और वो कैसा है बोले संक्षिप्त में सुना दे, अभी हमारे पास 5-10 मिनट बाकी है, दूसरा एक बिंदु भी लेना है। सत्यम परम धीमहि, वो ईश्वर कैसा है? सत्य है। भागवत चाहता तो कह सकता था कि कृष्णम परम धीमहि, ऐसा मत समझिए भागवत केवल वैष्णवों का ग्रंथ है या कृष्ण प्रेम करने वालों का ग्रंथ है, जी ना। वहां पर स्पष्ट कहा सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास चाहते तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि या हरिम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, जी ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। भागवत की दृष्टि अत्यंत विशाल है। भागवत कहता है मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं हमारे इष्ट सत्य है, और वो भगवान कैसे सत्य स्वरूप है, और उस जगत में कैसे हैं बोले माया की तरह। अब माया क्या है बोले भगवान ही इस जगत में है, तो हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हम सत्य कहते हैं। अभी हम आपको भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं, आपको भगवान के भक्तों के रूप में देखते, वंदन करते हैं, पर भगवान के रूप में नहीं देख पा रहे हैं हम। श्री रामकृष्ण देव ने भगवान के रूप में जगत को देखा है। बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बलराम बोस के वहां से
कतिपय मानी उनके घर की माताएं आई थी, श्री राम कृष्ण देव उनके साथ वार्तालाप कर रहे, उतने में एक मानी कुलांगना नारी थी, मानी कुलहीन नारी थी। वो कुलहीन नारी वहां से पसार होती है, गणिका पसार होती है। तो श्री राम कृष्ण देव कह रहे कि अरे तुम कैसे उसके साथ बातचीत करते हैं, और उन नारियों को लगता है कि श्री राम कृष्ण देव इतने अच्छे व्यक्ति होकर ऐसी गणिका के साथ क्यों बात कर रहे हैं। अब उनको समझाने के लिए ठाकुर उनको ले जाते माँ काली मंदिर में, काली के पास, और ठाकुर स्वयं कहते माँ तुम ही पवित्रता नारी के रूप में हो, तुम ही अपवित्र नारी के रूप में हो, तुम ही सब कुछ के रूप में तुम ही हो। श्री राम कृष्ण देव देख रहे हैं वो, तो कहते हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्यों? बोले माया के कारण। अब माया क्या है? तो भागवत कहता है जो है उसमें नहीं है का भाव करा देता है, वो है माया। और जो नहीं है उसमें है का भाव करा दे। मानी जा आछे ताते भाव कराबे एटा नय, और जेटा नय ताते भाव कराबे एटा आछे। बंगला आप लोग सुधार लीजिएगा, हाँ, कृपा करके। अब उसका अर्थ क्या है? देखिए, ये शरीर सत्य नहीं है हमारा, हम सब लोग जानते हैं। कोई एक साल में हम पैदा हुए और कभी न कभी हमको इस जगत को छोड़ करके जाना है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम सब लोग इसी शरीर को ही सत्य मानते हैं। बस स्वामी गुणेशानंद मानी कौन? मैं कहूंगा ये 3.5 हाथ का शरीर, इसी को हमने सत्य माना। ये नहीं है सत्य, क्योंकि जब हम मां के गर्भ में आए उसके पहले ये शरीर नहीं था, और जब हमारे अंत्येष्टि संस्कार हो जाएंगे तब ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, वो सत्य कैसे हो सकता है? असत्य ही है वो, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। भाई अभी बोल रहे हैं गुणेशानंद नाम की कोई एक शरीर का ढांचा, बोले वो भासित हो रहा है, सत्य नहीं है, भासित हो रहा है। भासित कैसे हो रहा है? बोले बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। वेदांत का उदाहरण आप सब लोग जानते हैं। रज्जू में सर्प का बोध होना। रज्जू पड़ी है, रज्जू मानी रस्सी, उसके अंदर में दूर से हम लोगों को सांप दिखाई देता है। मान लीजिए इसी हॉल के अंदर में कोई रज्जू पड़ी है, थोड़ा अंधकार है अच्छा खासा, हम लोग घुसे, अरे बाप रे सांप सांप सांप, चित्कार शुरू कर दिया, ये सांप आछे सांप आछे। सब लोग दौड़े, अरे करो, लाठी लेके आए, मारो उसको मारो। अब है रज्जू, पर दिखाई दे क्या रहा है? सर्प। सर्प दिखाई नहीं देता है, भासित हो रहा है। क्यों भासित हो रहा है? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? भाई लाइट नहीं हुई है, इसलिए वो सर्प जैसा दिखाई दे रहा है। तुरंत लाइट की, स्वामी जी कहेंगे कहां सर्प है भाई, ये तो रज्जू है। बस वैसे ही अज्ञान के कारण हम सबको भिन्न भिन्न मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब गुरु हमको ज्ञान रूपी प्रकाश देंगे फिर क्या होगा? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी जी ठाकुर के सामने यही भजन गाते थे ना, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। बस एकमात्र प्रभु ही अत्र तत्र सर्वत्र, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेदांती लोग यही कहेंगे, महात्मा लोग वेदांती है, वो लोग कहेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म है। भक्त लोग, हम लोग सब भक्त की कक्षा में हम लोग कहेंगे भाई सिया राममय सब जग जानी, अत्र तत्र। तुलसीदास जी कहते मुझे और कुछ दिखता नहीं, सिया राम ही दिखते हैं। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं उनको सबको वंदन करता हूं। यही भक्त की निशानी है। ज्ञानी कहता कि सब जगह ब्रह्म है, भगवान कहते मैं ही हूं, तुम अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न देख रहे हो। और अंत में बहुत सुंदर बिंदु है ये,
4 पुरुषार्थ आप लोग जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत कहता है धर्म का फल क्या है? धर्म का फल केवल एक ही है, मोक्ष। धर्म संपत्ति नहीं देता है, धर्म नाम यश पद प्रतिष्ठा नहीं देगा। धर्म का फल केवल और केवल मोक्ष है। मोक्ष मानी क्या? बंधनों से मुक्ति। क्या बंधन है? जन्म मरण का बंधन, ज्ञान अज्ञान का बंधन, पवित्रता अपवित्रता का बंधन। इसलिए श्री रामकृष्ण देव मां के पास गए और कहते, लो मां, ये ज्ञान और अज्ञान तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं, मुझे शुद्ध भक्ति दो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मां के पास गए और कहते, मां लो तुम्हारा सूची और असूची, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यही बात है, धर्म एक ही फल देता है और वो है मोक्ष रूपी फल। तो अर्थ किस लिए, संपत्ति भगवान ने किस लिए दी है? बोलिए, यदि आपके पास संपत्ति, संपत्ति का अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं है, सुंदर चरित्र वो संपत्ति है, सुंदर विचार वो संपत्ति है, सुंदर कार्य वो संपत्ति है। तो बोले यदि भगवान ने तुमको ये जो भी दिया है उससे तुम क्या करो? धर्म का अनुसरण करोगे तो धर्म तुमको क्या देगा? मोक्ष प्राप्त कराएगा। इसलिए मां बोलती है, मां कहती है ना, जार काछे आछे से दयाय, जार काछे नहीं से जपे। मां कहती है जिसके पास है वो दे और जिसके पास नहीं है वो जप करे। यदि आपके पास संपत्ति है तो दीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, तो आपका धर्म का अनुसरण हो गया, तो आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आपके पास नहीं है, आर्थिक संपत्ति नहीं है, तो आप भगवान का जप कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, तो धर्म का अनुसरण होगा, तो आपको मुक्ति मिलेगी। और काम किसके लिए है? कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो। काम भगवान ने इंद्रियों को भोग भुगतने के लिए नहीं दिया है। काम का एक ही अर्थ है, जीवन में जितना आवश्यक है उतना रखने का, बाकी सब कुछ भगवान को अर्पण कर देने का। और भागवत कहता है अंत में, देखिए भगवान की कृपा क्या है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तब एक ही फल देते हैं, और वो क्या है? सत्संग का फल। भगवान की अनंत कृपा हुई। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। स्वामी विवेकानंद का ये पैतृक निवास, एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये कोई सामान्य जगह नहीं है, समग्र विश्व के लिए बड़ा तीर्थ स्थान है। हम तो महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं, श्रद्धा निवेदित करते हैं अपने उनके चरणों में, कि उन्होंने हमको एक सुंदर मौका दिया ऐसे पवित्र स्थान में, जहां पर स्वामी जी कितना रहे, अधिक 21-22 साल से अधिक रहे। यहाँ पर कितनी सारी लीलाएं हुई। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान में आकर के भागवत का चिंतन करने का उन्होंने हमको सुअवसर प्रदान किया। और भगवान कहते हैं, मैं जब प्रसन्न होता हूं तब एक ही चीज देता हूं, और वो है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जब प्रसन्न होते तो सत्संग देते हैं जीव को। भगवान कहते तुम मेरी बात सुनो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंति ते भुरिदा जनाहा। भगवान कहते मैं जब प्रसन्न होता हूं तो जीव को सत्संग प्रदान करता हूं। आप सब लोग कितने भाग्यवान हैं, ऐसे विद्वान स्वामी जी को चरण में आप लोग आते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि आज हमको सुंदर सत्संग करने को मिला। हम महाराज जी के श्री चरणों में पुनः पुनः हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में हमारे वंदन निवेदित करते हैं, और आप सबके हृदय में जो भगवान निवासित है उनको वंदन करके भगवान को प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।